Now the other method of measuring the large distances is parallax method. Before starting, we are going to discuss about the parallax first of all. Parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sidewise. The closer object always appear to move in the direction opposite to that of the eyes. What it means? It means suppose if we are focusing an object O with the help of a pointer and by closing our left eyes and without moving our neck, if change the eyes, if we open the right eyes and close the left eyes, or then we observe the change in the position of the object. This change in the position of the object is known as parallax. Suppose कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपनी लेफ्ट आइज की हेल्प से फोकस करते हैं और अपनी गर्दन को हिलाए बिना वी आर चेंजिंग द आइज, यानी अब हम इस आइज को क्लोज कर दें और इसको ओपन कर दें, then what we will observe कि there must be apparent change in the position of the object. This apparent change in the position of the object is known as parallax. इसी को parallax कहते हैं. We can use the parallax method for measuring the distance of moon and any other planets. Now the parallax method for measuring the large distances. तो हम एग्जाम्पल इसमें लेते हैं मून का. सपोज दिस इज मून एंड दिस इज our earth. Now in this method what we will do, we will consider a point A and with the help of the telescope we observe the moon and also focus on a distant star. Now on the surface of the earth we move the point of observation, we change the point of observation which is indicated here at a distance b and the name of the point is B, and the position of A and B from this distant star is approximately same. So the imaginary line can be drawn on these 2 points by which with the help of telescope and this imaginary line we can obtain the angles phi 1 and phi 2, and by geometry these 2 angles are appear at a point P on the moon as vertically opposite angles phi 1 and phi 2. By knowing these 2 angles we can obtain the angle on the moon and this will be behave as a sector. Length of arc is B, distance is S which we are going to calculate, and angle we have observed from the surface of earth from 2 observation points. Now these angles, angle PAS dash, angle PAS dash is phi 1, second angle is again suppose phi 2. By the definition of the angle is equal to arc upon radius, length of arc is B and distance is S. हमें S कैलकुलेट करना है तो S is equal to B upon theta, where theta is angle APB यानी phi 1 plus phi 2. यानी कि हम अर्थ के किन्हीं 2 पॉइंट्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं ऑब्जर्वेटरीज, हम मून को फोकस करते हैं. इन दोनों ऑब्जर्वेटरी की डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली कि सपोज B है जो अर्थ के सरफेस पर है. अर्थ के सरफेस पर हम लोग डायरेक्ट मेथड से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. अब हमने कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने डिस्टेंट स्टार कंसीडर करा जो दोनों पॉइंट से अप्रोक्सीमेट सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है तो दोनों पॉइंट के बीच का गैप इनके सेपरेशन के कंपैरेटिवली क्या होगा, नेग्लिजिबल. इसलिए हम इनको क्या कंसिडर कर लेंगे कि यही स्टार, एक ही स्टार
ए पॉइंट से भी नॉर्मल बनाता है, बी पर भी नॉर्मल बनाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फाई 1 और फाई 2 कैलकुलेट हो जाएगा। फाई 1 फाई 2 कैलकुलेट होने के बाद हम इसे ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके पेपर पर हम ये एज्यूम करेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी फाई 1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी फाई 1 होगा और यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फाई 2 होगा। तो इस तरह से हमें एंगल ऑन द मून मिल जाएगा। एंगल ऑन द मून कैलकुलेट करके बाय दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ बाय द पैरेलैक्स मेथड। नाउ फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस we can calculate the size of the molecule of ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या होता है? ओलिक एसिड होता है एक सोपी लिक्विड जिसका मोलिकुलर साइज कैसा होता है? लार्ज। ये क्या चीज है? ओलिक एसिड जो है, ओलिक एसिड है एक सोपी लिक्विड जिसका मोलिकुलर साइज जो है वो है लार्ज, मोलिकुलर साइज लार्ज है। हम इस मोलिक्यूल के डायमीटर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड and dissolve or dilute it with the help of alcohol in such a way the mixture becomes 20 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया? हम क्या करना चाहते हैं इस बार? हम वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। वेरी स्मॉल डिस्टेंस में हमने क्या लिया? हमने सोपी लिक्विड का मोलिकुलर साइज को लिया। मोलिकुलर साइज को कैलकुलेट करेंगे अगर हम सोपी लिक्विड के, तो स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट हो जाएगा। इसके लिए हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ये ओलिक एसिड लिया और इसमें अल्कोहल से इसको डाइल्यूट कर दिया, अल्कोहल इसमें मिला दिया और इस तरह से मिलाया कि कंप्लीट सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन के 20 सेंटीमीटर बन जाने पर जो परसेंटेज ऑफ ओलिक एसिड है वो कितनी हो जाएगी? 1/20, क्योंकि 1 पार्ट ओलिक एसिड है, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है। 1/20 is the concentration of oleic acid in this liquid. Now we are taking, अब हम इस लिक्विड की क्या लेते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/20 है, उस लिक्विड का 1 सेंटीमीटर क्यूब नाउ वी आर टेकिंग। अब हम इस लिक्विड का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं और उसमें फिर से अल्कोहल मिलाते हैं और इन सच अ वे द लिक्विड बिकम्स 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर परसेंटेज और हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड जो हो जाएगी 1/20 इंटू 20 हो जाएगी। हो गया। नाउ वी विल टेक अ फिल्म ऑफ वाटर। ये क्या है? फिल्म ऑफ वाटर, यानी इट इज द अपर फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ ब्रॉड कंटेनर। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, we pour drop by drop this solution on the surface of the water. Before this, we can spread the lycopodium powder if we obtain any kind of abnormalities. Now what will happen? This oleic acid start expanding on the surface of the water. अगर हम ये कंसिडर करें कि there are n drops of the water poured, n drops of the oleic solution which is poured on the free surface of the water.
and V be the volume of each drop, then NV will be the total volume which is poured on the free surface of the water of this mixture. तो volume of n drops of solution is NV सेंटीमीटर क्यूब. बट इसके अंदर जो अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड है ये हो जाएगी NV अपॉन 20 इंटू 20 का मतलब होता है 400 सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर द थिकनेस of the oil film T is equal to volume of the film divided by area. तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्म तो हमने लिखा है, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ. वॉल्यूम ऑफ द फिल्म हमने लिखा है. इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं. वॉल्यूम ऑफ द फिल्म हमने कितना लिखा है NV अपॉन 400 और एरिया जिस एरिया में ये स्प्रेड हुआ सपोज A है तो विद दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट T. T इज द थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ओलिक एसिड विच इज NV अपॉन 400 अपॉन A, जहाँ पर n नंबर ऑफ ड्रॉप है जो ओलिक एसिड सॉल्यूशन किसके ऊपर डाली गई है वाटर फिल्म के ऊपर. V वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप है. A एरिया जिसमें वो स्प्रेड हो गया. इस तरह से हम थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ द ओलिक एसिड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पर इवेपोरेट हो जाता है तो ओलिक एसिड सिर्फ बचता है. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ओलिक एसिड और स्मॉल डिस्टेंसेस.